Hey friends, welcome again. Today we are going to continue our series of videos whereby we are reading Indian Contract Act. Our today's topic is when is communication of acceptance complete? As soon as the communication of acceptance is complete, we all know a contract comes into existence. See, a contract consists of an offer, an acceptance, and for an offer to be valid, it is necessary that the offer is made by the offerer himself or his authorized agent to the offeree. And for an acceptance to be valid, it is equally important that the acceptance is communicated to the offerer by the offeree himself or his authorized agent. So, this we have studied previously in case number Paul versus Lee, whereby it was stated that it is necessary that the acceptance must be communicated to the offerer either by the offeree or by some duly authorized person on his behalf. If a person makes acceptance in his individual capacity, then it is not valid acceptance. तो इसी पे बेस है हमारा ये आज का टॉपिक कि एक एक्सेप्टेंस जो वैलिड एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी। तो इसमें एक दो एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। एक फर्स्ट एस्पेक्ट पढ़ेंगे एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड सेकंड पढ़ेंगे एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। Section 4 of Indian Contract Act explains the following rules when the communication of acceptance is made by post or telegram. See, let's ignore these words, post and telegram, and we must read this section as Section 4 of Indian Contract Act 1872 explains the following rules when communication of acceptance is made. It says that communication of acceptance is complete as against proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. See, in every contract there are two persons, A and B. Suppose here A is the proposer and B is the offeree. So A makes an offer to B to buy his car and B accepts his offer. So while accepting his offer, he sends a letter of acceptance to B. Now this acceptance is complete as against the proposer, that is A here, when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. यानी इस केस में जब B A के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू अ लेटर, जब वो उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देगा तो वो लेटर उसकी पावर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और वो एंड इट कैन बी सेड दैट इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर, ताकि वो उसके पास पहुंच जाए और वो आउट ऑफ द पावर है किसकी, बी सी। तो हम मानेंगे दैट एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर यानी ए। यहाँ पे एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब है कि जब एक्सेप्टेंस ए के खिलाफ कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ए अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। सिमिलरली एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जो लेटर बी ने ए को सेंड किया है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जब वो लेटर ए पढ़ लेगा तो उसकी नॉलेज में आ जाएगा कि बी ने मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तब हम मानेंगे दैट एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कौन है यहाँ पे एक्सेप्टर, बी। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ कि अब एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। देखिए यही बात इलस्ट्रेशन में बताई गई है। बी एक्सेप्ट्स एज proposal by a letter sent by post. The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted. तो जैसे ही उसने लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट किया वो उसकी पावर से बाहर हो गया और एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है एज अगेंस्ट ए। जैसे उसने लेटर पोस्ट किया उसके बाद बी के पास कोई भी पावर नहीं है अपने ऑफ़र को रिवोक करने के लिए। इसी तरह जब लेटर ए को रिसीव हो जाएगा तब हम एक्सेप्टेंस को कंप्लीट मानेंगे एज अगेंस्ट बी।
इसका मतलब क्या हुआ, अब बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि लेट्स इग्नोर दीज वर्ड्स पोस्ट एंड टेलीग्राम। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि एक्सेप्टेंस वेरियस मोड से होती है। जब दो पार्टीज अब अगर एक जगह पे एक साथ बैठी हैं तो वो उसी टाइम पे इमीडिएटली ऑफर और एक्सेप्टेंस कर लेती हैं, लेकिन व्हेन दे आर एट प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होती है, या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, या टेलीग्राम, टेलीग्राफ, या फिर ईमेल होता है, पोस्ट होता है, लेटर सेंड बाय पोस्ट। तो वेरियस मोड्स होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटीज़ रहती हैं, तो वो हम आज ही इस सेक्शन में डील करेंगे। ऑफरर बाउंड व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और टेलीग्राम इज़ पोस्टेड टू हिम। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जब भी हम एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू करते हैं वो एक्सेप्टेंस उस एक्सेप्टेंस में जो रूल्स अप्लाई होंगे वही टेलीग्राम के थ्रू की गई एक्सेप्टेंस पे अप्लाई होंगे। सो लेट्स स्टडी दीज रूल्स। It has been noted above that the communication of acceptance is complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted to him. The moment letter of acceptance is posted, the offerer becomes bound. He becomes bound immediately on the posting of the letter to him, and it makes no difference that the letter is delayed in transit or it is even lost in the post. An offerer never receives it. So this is very important point. ये क्या कह रहा है कि ये बात इमैटेरियल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेटर ऑफरर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। द मोमेंट लेटर इज़ पोस्टेड ऑफरर बिकम्स बाउंड। तो उसके बाद जैसे ही बी ने लेटर को पोस्ट किया वैसे ही ए बाउंड हो गया, यानी अब वो अपने ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकता है। जब तक ये लेटर ए तक नहीं पहुंचेगा तब तक बी तो फ्री है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए, लेकिन ए फ्री नहीं है अब अपने ऑफर को रिवोक करने के लिए। Here we have an important case, that is JK Enterprise versus State of Madhya Pradesh. The petitioner submitted a tender to purchase Tedu leaves on 11/1/93. The respondents sent communication of acceptance by registered cover dated 12/2/93 on the address given by the petitioner. The said letter of acceptance was however returned to the respondents. See, letter offerer तक पहुंचा ही नहीं. It was held that dispatch of letter of acceptance had amounted to acceptance and completion of the contract. If there is acceptance of tender by telegram, the contract becomes concluded when the telegram is dispatched. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो रूल्स हम लेटर पे अप्लाई करते हैं एक्सेप्टेंस बाय लेटर, वही रूल्स अप्लाई होंगे एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। तो द मोमेंट टेलीग्राम इज़ डिस्पैच, जैसे द मोमेंट लेटर इज़ पोस्टेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कंक्लूडेड, and therefore the place of contract is where the acceptance telegram starts its journey. तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे फॉर्म माना जाएगा, तो ये है द प्लेस वेयर टेलीग्राम स्टार्ट्स इट्स जर्नी। तो ये है हमारा टॉपिक जो डील करता है कि हमारी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ व्हेन कंप्लीट। इसमें हमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जानना है। सबसे पहले ये एक्सेप्टर बाउंड व्हेन हिज लेटर रीचेज द ऑफरर। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेप्टर यानी हमारे केस में कौन था, एक्सेप्टर बी। तो बी कब बाउंड होता है, जब लेटर रीचेज द ऑफरर, जब लेटर ए तक पहुंच जाएगा तब बी बाउंड है। जब तक लेटर नहीं पहुंचता तब तक बी फ्री है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए। ठीक है, तो इट हैज़ बीन नोटेड अबाउट दैट दो द ऑफरर बिकम्स बाउंड व्हेन द लेटर इज पोस्टेड टू हिम। ठीक है, द एक्सेप्टर हिमसेल्फ डज नॉट बिकम बाउंड देयर बाय। In India, an acceptor becomes bound by his acceptance when his letter of acceptance comes to the knowledge of offerer. तो जैसे ही ए लेटर को रिसीव करेगा वैसे ही बी बाउंड हो जाएगा, लेकिन तब तक बी फ्री है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करने के लिए।
जो सेक्शन 4 एंड 5 है उसमें हमें पता चलता है वेरियस रूल्स के बारे में जो डील करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन। तो इन सेक्शंस में जो भी इलस्ट्रेशंस दी हैं वो हमें लेटर से रिलेटेड दी हैं। जैसे अभी जो हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी थी तो वो भी कौन सा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस था, बाय द लेटर। तो इनको पढ़ने से ये पता चलता है कि जो लेटर और टेलीग्राम से रिलेटेड रूल्स हैं दे आर नॉट द जनरल रूल्स, दे आर अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल। तो फिर ये नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल वो होता है जब पार्टीज़ एक दूसरे की प्रेजेंस में होती हैं, आमने सामने बैठी होती हैं, और एक पार्टी ऑफ़र करती है और दूसरी पार्टी इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करती है और उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। और तो कोर्ट्स ने वेरियस डिसीजन में ये बात कही है कि जब हम एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस करते हैं थ्रू टेलीफोन तो वो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पार्टीज़ ने अपनी प्रेजेंस में ही किया होता है। यानी ये माना जाएगा कि पार्टीज़ एक दूसरे के सामने बैठी थी और उन्होंने तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस आता है हमारे सामने, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉर्पोरेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया that in case of telephonic conversation the position was same as in case where parties were in the presence of each other and the rule of contract through post did not apply to such contracts। तो नॉर्मल रूल क्या है? पार्टीज़ एक दूसरे की प्रेजेंस में हैं, एक ने ऑफ़र किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है और द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। प्लीज़ नोट दैट पॉइंट माय फ्रेंड्स, जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव होती है नॉर्मल रूल में वो होता है प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In case of acceptance by post, the contract is concluded when the letter of acceptance is posted, whereas in case of acceptance by phone, the contract is deemed to be complete when the offerer hears the acceptance, यानी वो acceptance को receive करता है at his end। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक होता है हमारा नॉर्मल रूल और एक होता है हमारा उसका स्पेशल रूल। जो नॉर्मल रूल है वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, यानी पार्टीज़ एक दूसरे की प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करती हैं। वेयर एज इन स्पेशल रूल पार्टीज़ आर नॉट इन देयर प्रेजेंस एंड दे मेक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर और टेलीग्राम। ठीक है, जो मैंने आपको बताया नॉर्मल रूल जब पार्टीज़ अपनी प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं, वही नॉर्मल रूल अप्लाई होता है जब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। सी यहाँ पे हमें कोर्ट ने जो अपनी सजेशंस दिए थे, जो अपना डिसीजन दिया था, उसको रीड करते हैं। इन केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन अ सेंस द पार्टीज आर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, ईच पार्टी इज एबल टू हियर द वॉइस ऑफ द अदर, there is instantaneous communication of speech intimating offer and acceptance, rejection और counter offer। सो फ्रेंड्स जो भी इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होंगे उन सब में ये माना जाएगा कि पार्टीज़ एक दूसरे की प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, और जो लेटर है, टेलीग्राम है, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल के, दे आर अ काइंड ऑफ स्पेशल केसेस। जब लेटर और टेलीग्राम से कम्युनिकेशन होती है तब जो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो होगा द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड और वेयर द एक्सेप्टर from where the acceptor sends his acceptance, whereas in case of instantaneous communication or other communication the place of formation of contract is where the acceptance is received। So friends आज के लिए बस इतना ही।